सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रदब्रह्मा तदब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदुत्नाद्यति कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. Thank you, members. Now I request CA Umeshji Ketan to give a introduction of today's speaker. Umeshji, please. Thank you, Shyam. Thank you, Pankaj ji. Our today's speaker, CA Pankaj ji, is basically from Ahmedabad. The firm is engaged. His firm is engaged in the activity of credit report consulting, commonly known as civil consultancy, understanding of client report and the process of civil improvement. The firm is engaged in the Food Safety and Standard Authority of India license FSSI and APEDA license and Spice Board of India license. His firm is mainly reporting of civil and FSSI and APEDA. It basically give the consultancy to the corporate clients and maintenance of ROC work, and he has done more than 5,000 credit reports and 800 plus civil improvements till yet. He is practicing in the field of civil in the last 4 years. He has done more than 50 FSSI license and also files annual return of SSI quarterly returns also. Sir, please give your today's सिविल रिपोर्ट के बारे में आप जो है वो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको गाइड कीजिए कि कैसे सिविल हमें इम्प्रूव करना चाहिए और क्या क्या लिटिगेशन इसमें है जो हम क्लाइंट को उसमें कुछ फोकस कर सकें कि भाई क्या इसमें हम नया एक एरिया जो है वो डेवलप कर सकें इस फील्ड में. Okay. Can you see my screen? Yes, sir. My presentation. Can you see my presentation? Yes, थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है लेकिन स्क्रीन प्रॉपर आ रहा है. हो गया श्याम, वो हो गया काम. हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस सर. yes, sir. हाँ. First of all, civil is nowadays important roles in every lending process. If you apply for credit card, if you apply for home loan, if you apply for mortgage loan, any kind of loan, civil is one of the key aspects of the loan. So one of the key aspects of the loan. First of all, I introduce what is a civil. Civil basically it's a maintain the data of individuals and corporate companies. Collects and maintain the data of the every loan, credit card, every kind of loan, and generate the credit report. In every civil will maintain the all kind of loan, and bank will share the data to the civil, and civil will maintain that record and generate the report. In India, there are 4 kind of are you see my screen? Yes, sir. Yes. In India, one of the oldest institution is a civil.
generally a CIBIL is a company, is a commonly known as a credit report. As you know, the CIBIL is the oldest institution in India to generate and maintain the report. And then after Experian will come in India, CRIF and Equifax. All four institutions are foreign company to generate and maintain the credit report to, and provide the data to the members as well as the consumers. There are two kinds of credit report. That is one of the consumer report, and other is commercial report. Consumer report generally deal with the individuals, and the commercial report deal with the companies and financial institutions. And in another, in every report, there are two types. One is members report, another is consumer report. If we purchase the report from the CIBIL or Experian or CRIF, it's a consumer report. And every time we apply for the loan and they will generate the report, it is called as a members report. We also, I also provide the service of the how to register with the members, how to get the membership of the CIBIL and Experian, Equifax, all we have to, if any NBFC has to take the license from the RBI and they want to apply to the CIBIL and they want to provide the data to CIBIL, generate the report, then the NBFC and that financial institution has to take the membership of the CIBIL. The importance of CIBIL. The CIBIL is the first check or the first impression to every loan approval, credit card, loan, etc. The CIBIL will determine the credit worthiness or credit health checkup. One kind of say that whenever any person apply to the loan or credit card, that financial institution will check the CIBIL report, and then it will determine whether we will give the loan to the subject to the borrower or not. So their past history has been shown in their CIBIL report. There are two famous quotes I represent. I write the to credit. If you do not take your credit score, then your credit will not care for you. This is one kind of score. How does my CIBIL score matter? Credit approval, as you know, credit approval. Every bank and financial institution will depends on the credit in the CIBIL report, credit report. And nowadays, every bank and every financial institution generate the four credit report: CIBIL, Experian, Equifax, CRIF, IMAR. Just 1 minute. Hello. Second. Okay. 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 Are you seeing my screen? If anybody, I Yes, share sir. my screen. Okay. So credit approval. तो कोई भी लोन अगर हम अप्लाई करने जाते हैं बराबर, तो उस टाइम every bank and every financial institution check your report and generate the report, and then after it will be approval or not. If your आपका अगर स्कोर अगर अच्छा है तो आपको मतलब
अभी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसने स्कीम निकाली है कि अगर आपका स्कोर 785 से ज्यादा है तो आपको 6 आपका स्कोर आपका स्कोर 685 या 670 पे हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 750 से ज्यादा है और 785 से 785 से कम है, तो आपका रेट 7%, मतलब इट विल इम्पैक्ट योर सिबिल स्कोर। इफ योर आपका अगर आपका जितना ज्यादा स्कोर है उतना आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगी। बट अगर हम कंपनी का सिबिल स्कोर देखें, कंपनी का, तो उसमें सीएमआर रैंकिंग आती है। तो सीएमआर रैंकिंग अगर 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा, तो आपका सिबिल स्कोर कम माना जाता है। मतलब सिबिल स्कोर इंडिविजुअल में क्या होता है, जितना ज्यादा उतना अच्छा, पर सिबिल स्कोर इन टर्म्स ऑफ कंपनी सीएमआर रैंकिंग, अगर जितना ज्यादा उतना आपका स्कोर बैड, मतलब खराब कहा जाता है। अभी काफी सारी बैंकों ने ऐसा भी चालू किया है, जैसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसी बैंक। तो अगर किसी जगह आपको लोन लेना है, तो किसी जगह आपको मतलब जॉब लेनी है, तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके वो नॉन क्रेडिट इंक्वायरी जनरेट करते हैं। तो वो जनरेट करने के बाद वो जैसे आपको एम्प्लॉय मतलब आप हायर करना है या नहीं करना, मतलब अपने इंस्टीट्यूशन में, तो वो लोग पहले आपका सिबिल स्कोर निकालते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो तभी आपको रिक्रूट करेंगे। अभी बहुत सारी बैंकों, इवन नेशनलाइज बैंकों में भी रिक्रूटमेंट से पहले आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है। इवन आप पोस्टपेड, जियो पोस्टपेड अगर लेते हो या एयरटेल पोस्टपेड लेते हो, तो पोस्टपेड कनेक्शन के लिए भी nowadays they will generate the CIBIL report, then after they will give the postpaid connection। तो इट विल, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो दे विल गिव द क्रेडिट फैसिलिटी टू द पोस्टपेड, दे विल रिक्रूट एंड द CIBIL score। These are the advantages of your CIBIL score. If your score is good, 750 or more, then it will be quick approval of your loan, low interest rate, as I said earlier, more negotiation power with the banks, home loan. These are the ability to credit facility easily. These are the मतलब हाउ टू कैलकुलेट योर सिबिल स्कोर। मतलब काफी लोग पूछते हैं कि सिबिल स्कोर जनरेट कैसे होता है, हाउ हाउ टू डिटरमाइन योर स्कोर। मतलब आपका 785 स्कोर है, अगर आपका 655, 700 से नीचे 650 है, 735 है, तो कैसे वो उसको इम्प्रूव करते हैं। तो हाउ सिबिल का एल्गोरिदम क्या है, दे हाउ दे विल जनरेट स्कोर। उमेश जी, मैं ठीक अभी सुनाई दे रहा है सबको? नहीं दे रहा, थोड़ा सा आवाज बीच में ब्रेक ब्रेक होता है हल्का। ओके, लेकिन ऐसे ठीक है, मतलब ओके, विजिबल है, तो स्क्रीन विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अभी इसमें क्या होता है कि ये है, मतलब देयर आर द सेवरल फैक्टर्स। मतलब आपका क्रेडिट एक्सपोजर क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, हाउ मतलब क्रेडिट टाइप क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, और आपने कितनी बार इंक्वायरी की है, या आपका प्रोडक्ट मिक्स क्या है। तो ये सब चीजों पे सिबिल स्कोर डिटरमाइन करता है। तो ये मतलब सिबिल स्कोर बेसिकली सिबिल स्कोर आपका जैसे आपका पास्ट परफॉर्मेंस है, मतलब आप अगर जो लोन लिया है उसको कैसे आपने कितने टाइम में मतलब आपका जो क्रेडिट प्रीपेइंग जो है वो रेगुलरली है कि नहीं। मतलब आपने जो मतलब आपका इंस्टॉलमेंट 7 तारीख को आता है, 7 तारीख को आता है, और आपने 9 तारीख को किया है,
तो वो 2 दिन या 3 दिन डिले पेमेंट किया जाता है। तो आपने कितने बाउंसेस अपने ईएमआई किए हैं, तो उसकी रीपेइंग क्या है। फिर आपका स्कोर, जैसे आपने अपने स्कोर मतलब आपके स्कोर के अंदर कितने टाइप के क्रेडिट टाइप है, मतलब आपका क्रेडिट कार्ड कितना है, सिक्योर लोन कितना है, अनसिक्योर लोन कितना है, आपका पूरा एक्सपोजर क्या है, तो वो सब के ऊपर भी सिबिल स्कोर डिटरमाइन होता है। और बार बार अगर आपने मल्टीपल लॉगिन किया है, मल्टीपल इंक्वायरी किया है, तो उससे भी आपका स्कोर अगर स्कोर कम होता है। जस्ट 1 मिनट। तो सिविल स्कोर जो है, तो देर आर नंबर्स ऑफ इंक्वायरी। तो मैं काफी बार अपने क्लाइंट को भी बोलता हूँ कि भाई एक बार अगर सिविल की वजह से अगर आपकी लोन किसी कारण से अटक गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दी सिविल स्कोर, व्हाट आर दी डेलिक्वेंसी रिपोर्टिंग इन अवर सिविल स्कोर, और वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर दी इनएक्यूरेसी, व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग योर स्कोर। तो हमको चेक करना है कि अगर बार बार अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और बार बार रिजेक्ट होता है, तो इट विल अफेक्ट योर सिविल स्कोर। अगर एक बार इंक्वायरी किया किसी बैंक में या फाइनेंशियल, उसने रिजेक्ट मारा, तो 3 से 5 पॉइंट का भी मतलब कम हो जाते हैं। तो और आपने आपने मतलब सिविल स्कोर जो है आपका एक फाइनेंशियल बिहेवियर है। मैं काफी बार बोलता हूँ सिविल स्कोर एक बिहेवियर ही है, फाइनेंशियल बिहेवियर। आपने कैसे अपने रीपे किया, आपका टेन्योर क्या है, आपका प्रोडक्ट मिक्स क्या है, सिक्योर वर्सेस अनसिक्योर क्या है, आपका टोटल एक्सपोजर, आपका जो इनकम के साथ अगर आपने आपका टोटल एक्सपोजर कितना है, तो वो सभी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बराबर। सिविल स्कोर जनरली 300 के 900 के बीच में आता है। जितना सिविल स्कोर 750 से ज्यादा, तो उतना सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है जनरली। इन टर्म्स ऑफ कंपनी, अगर कंपनी का अगर पार्टनरशिप फर्म का हम सिविल स्कोर निकालते हैं, या कोई किसी ट्रस्ट का सिविल स्कोर निकालते हैं, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिविल स्कोर निकालते हैं, या प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का भी सिविल स्कोर निकालते हैं, वो सिविल रैंक होता है। तो रैंक 0 से 10 के बीच में आता है। तो अगर जितना ज्यादा 5 या 6 से ऊपर है, तो उतना सिविल स्कोर मतलब खराब माना जाता है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपका सिविल स्कोर 8 है, सिविल रैंक 8 है, तो उस कंपनी और फाइनेंस उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को, तो वो लोन नहीं देते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर 5 या 6 होगा, तो भी हम सिविल स्कोर अपने क्राइटेरिया में बैठते हैं। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि काफी मिस रिपोर्टिंग होती है, काफी बार ऐसा भी होता है कि उनका रिस्क जो होता है जो सिविल स्कोर के अंदर, तो वो पोर्शन ज्यादा हो जाता है, तो हमको वो पोर्शन कम करना होता है। तो द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज अबाउट द हाउ टू इम्प्रूव योर सिविल स्कोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सिविल स्कोर परचेज करना होता है। तो देर आर ऑल 4 क्रेडिट ब्यूरोज अवेलेबल इन इंडिया, सिविल, एक्सपीरियन, क्रीफ, इक्विफैक्स। काफी बार ऐसा भी होता है, मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं कि आपका सिविल अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, पर आपके क्रीप या इक्विफैक्स में ऐसा मतलब स्कोर आपका 300 ही आता है या 400 आता है, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, तो वो भी एक क्वेश्चन है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बाय करते हैं सिविल स्कोर जो भी क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइट है। Then after we have to analyze the report, find out the bad loan account, find out the what are the delinquency reporting, what are the inaccuracy reporting, and then after we have to जैसे किसी के सिविल स्कोर में राइट ऑफ है या सेटल है, राइट ऑफ या सेटल है, तो उस वक्त हम कैसे उसको हम डील करके वो करा दे। जनरली आई मतलब जो राइट ऑफ या सेटल अकाउंट होता है, तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ
मैं नेगोशिएशन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बैलेंस और क्या अमाउंट पे करने को आ रहा, तो वो हम निकालते हैं। उसके बाद कितना कम होके उसको लोन क्लोज करवाते हैं। तो वो ही हर एक बैंक की अलग अलग प्रोसीजर होती है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक में है, अभी ऐसा है कि जैसे पुरानी बैंक थी बार्कलेस बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड या एबीएन एम्ब्रो, तो उसकी सारी एसेट्स जब इंडिया में उन्होंने निकले इंडिया से, तो उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो अपना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कोटक को बेच दिया। अभी हमको वो जो सिबिल स्कोर में जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो कोटक के साथ हमको वो करना पड़ेगा। तो कोटक के को कैसे, मतलब हर एक बैंक का अलग है। जैसे हम कोटक में क्या करते हैं कि जैसे पहले बैलेंस निकालते हैं, अगर पार्टी एग्री होता है कि भाई या ये लोअर लिमिट पे क्लोज हो सकता है, तो हम वो क्लोज करवाते हैं। उसके बाद उसका पेमेंट पहले प्री एनओसी लेटर लाते हैं। प्री एनओसी लेटर क्या होता है कि अगर ये तारीख तक ये कस्टमर अगर पे कर देता है ये अमाउंट, तो हम ये अकाउंट, बैंक बोलती है कि हम क्लोज कर देंगे। देन आफ्टर वी हैव टू मेक द पेमेंट, then after we have to generate the post NOC, and then after we have to update our CIBIL report that respected bank and financial institution. CIBIL score update होता है हर एक। CIBIL never change the data. CIBIल अपने आप खुद डेटा चेंज नहीं करता। द रिस्पेक्टेड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल होती है, उसके बाद ही वो सिबिल अपने डेटा चेंज करता है। सिबिल के पास अपना खुद का राइट नहीं है कि वो किसी का भी डेटा चेंज कर सकता है। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी इनएक्यूरेसी आती है। तो एक सेकंड, तो काफी बार इनएक्यूरेसी भी आती है, और वी हैव टू consider that matter, and we have to file a dispute with the CIBIL also. There are two ways to improve your CIBIL score. First of all, if you will strictly directly straightforward apply to the dispute with the CIBIL. Other one is to provide the proper information to the bank or financial institution to update the CIBIL. There are the steps to update your CIBIL. As you say that the secure versus that is also called as a loan mix or product mix. So if you rely on the unsecured loan in your loan portfolio in your CIBIL score, if all are unsecured or credit card, it might be affect your CIBIL score. If you utilize 80 to 90% of unsecured loan, if your credit card limit is 1 lakh, if you utilize more than 50% or 60%, it will affect your CIBIL score. So if your credit card limit is 1 lakh, you can use, but if you use the continuously, it will be impact your CIBIL score. Just 1 minute. सर आपका ये कहना है कि अगर सिबिल मतलब क्रेडिट कार्ड में अगर 1 लाख या 2 लाख का लिमिट किसी को मिलता है, तो उसको पूरा यूज नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? और नहीं, पूरा यूज करो, पर कंटिन्यूसली अगर आप यूज करते हो। हाँ, जस्ट 1 सेकंड ना, जस्ट हेलो, एक मीटिंग में बैठो तो करो फोन। हेलो, हाँ सर। हाँ बोलिए सर। जैसे क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे क्लाइंट के पास जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं, और कुछ क्रेडिट कार्ड तो कंपनियां अपने से ऑफर करके भेज देती है, उसको मालूम भी नहीं होता कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। और जब नॉन डिफॉल्ट का उसके पास नोटिस आता है कि भाई कुछ पेमेंट बाकी है, तब पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड उसके नाम से इशू है, और वो अमाउंट बढ़ाते बढ़ाते ज्यादा भी कर देता है, फिर वो सेटलमेंट होता है। तो उस केस में उसकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन क्लाइंट को क्या है कि फिर वो सेटलमेंट में जाना पड़ता है। ऐसा है
बराबर, ये बहुत बहुत पुराने केस थे, अभी ऐसे नहीं है। अभी अभी बैंकों का सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। अभी अगर आप अप्लाई या साइन करते हो तभी क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है। अपने आप वो लोग पहले भेजते थे, बराबर, आज से पहले, बराबर। तो अभी ये सिस्टम बंद हो गया है, बराबर। तो पहले बहुत सारे ऐसे थे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ऐसे कई सारी बैंक थी, वो अपने आप देखते। हाँ, एक चीज है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी क्रेडिट कार्ड पे, वो कंटिन्यूसली इफेक्ट करता है आपका। एक दो बार आपने यूज किया, अगर मतलब आपका जो एक्सपेंस है उसके आपने लोन, आपने अगर जरूरत पड़ी आपने कार्ड यूज किया, वो कोई चीज गलत नहीं है। पर आपने कंटिन्यूसली आप 80-90% आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज कर रहे हो, और उसका अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हो या मिनिमम पेमेंट कर रहे हो, तो वो हाई यूटिलाइजेशन ऑफ योर क्रेडिट कार्ड माना जाता है। दूसरी चीज है कि अगर आपने एक साथ कई सारे जगह आपने ऑटो लोन के लिए अप्लाई कर लिया, होम लोन के लिए अप्लाई कर लिया, मतलब साइमल्टेनियसली या एक पैसेज ऑफ पीरियड, तो उसका भी इम्पैक्ट, उसको बोलते हैं क्रेडिट हंग्रीनेस बिहेवियर। तो जो बिहेवियर एस्पेक्ट है, मतलब बहुत सारी जगह अगर आपका लॉगिन चल रहा है, तो अगर अगर आपका प्रपोजल फाइनल नहीं हो रहा, तो आपको थोड़े समय के लिए रुक जाना बेटर है। हेलो। ओके सर, एक चैट बॉक्स में था कि अगर किसी फादर का सिविल जो है वो पुअर है, तो क्या उसके सन का भी सिविल जो है वो इफेक्ट करेगा? नो, नो, नो। नहीं है। सिविल स्कोर विल जनरेट थ्रू दी पान और आधार। इट विल, इफ फादर का स्कोर पुअर है, तो उसका लड़के का या उसका सन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बराबर। लेकिन बहुत सारे केस में जब लोन अप्लाई करते हैं, तो वो अप्लीकेंट और एज ए को अप्लीकेंट जो है फादर या वाइफ को या मदर को जनरली लेता है, तो उस केस में थोड़ा सा ये इफेक्ट आता है। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि जब भी हम को एप्लीकेंट या गारंटर को लेते हैं, हाँ। बराबर, तो को एप्लीकेंट या गारंटर अगर डिफॉल्ट किया है, तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं लेंगे को एप्लीकेंट की तरह। तो ऐसे मैं एक चीज मान रहा हूँ कि अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लगता है को एप्लीकेंट ने पास्ट में कोई गलती किया है, तो वो उनका पहले सिविल स्कोर निकालो, उसके बाद उसको कोई एप्लीकेंट तरीके के लो, या ऐसा रखो किसी दूसरे आदमी के, या उसकी वाइफ को, या उसको लो। तो इट्स अ बेटर ऑप्शन टू। और मैं एक चीज मान रहा हूँ कि एवरी गारंटर या को एप्लीकेंट आर लायबल, बराबर। अगर अगर आपने किसी में गारंटी दिया है, अगर वो आदमी अगर डिफॉल्ट करता है एप्लीकेंट, तो वो सिविल स्कोर पे, उसका गारंटर का सिविल स्कोर पे भी इम्पैक्ट होता है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि अ, अगर आप किसी में गारंटर भी बनते हो, किसी में आपने गारंटी दी या कोई एप्लीकेंसी में जॉइंट होल्डर हो लोन में, तो उसमें एक चीज, मतलब वो आदमी का इंटेंशन या वो आदमी का, मतलब ऐसा भी, मतलब एक चीज हमारे मतलब बोलते हैं कि हम किसी भी समय उसका मतलब गला पकड़ सकते हैं, मतलब उसको पकड़ सकते हैं, या उसको ऐसा बोल सकते हैं भाई तू टाइमली पेमेंट कर, या तू क्यों इसमें ओवरड्यू आ रहा है। तो वो हमेशा गारंटी में भी हमको ध्यान रखना है कि किसी भी पर्सन में हमको गारंटी नहीं देना देना है, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर वो आदमी डिफॉल्ट करता है और हम कुछ बोल भी ना सके, ऐसे आदमी को भी हम गारंटी नहीं देना ठीक है सर। चाहिए। मेक टाइमली पेमेंट। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट को भी बोलता हूँ कि भाई आप एक रिमाइंडर, अगर आपको टाइमली पेमेंट करना है तो आप एक रिमाइंडर सेट कर दो कि भाई ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किस टाइम पे आता है। तो एक रिमाइंडर या ACH मैंडेट, मतलब आज की तारीख में ECS कर सकते हो, या उसी बैंक में, या ऑटो पेमेंट, ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी यूज कर सकते हो। तो इट विल बी नेवर
मतलब आप अगर आपका पेमेंट कभी भी डिले नहीं हो सकता, मतलब हो जाएगा। तो अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो भी आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है। दूसरी चीज है कि आपने कि भाई किसी दूसरे आदमी को आप गारंटी देते हो, तो हमको मतलब मैंने लिखा है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टेक ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी give the guarantee to any person और पर्सन, मतलब जिस आदमी को आप पकड़ नहीं सकते हो, जिस आदमी को आपके पास उसकी पकड़ नहीं है, तो उसमें गारंटी नहीं देनी चाहिए। सिविल बिलीव ऑन द कंसिस्टेंसी, अगर आपका कंसिस्टेंसी जितना टाइमली पेमेंट है, प्रोडक्ट मिक्स अच्छा है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री पूरी अच्छी है, तो इट विल बी सिविल बिलीव ऑन दी बिहेवियर एस्पेक्ट। आपका सिविल रिपोर्ट जनरेट होता है आपका 36 मंथ की जो हिस्ट्री होती है उसके ऊपर, उसके बेसिस पे जनरेट होता है। तो आपका मतलब आपने 10 साल पहले कुछ किया है और उसका इम्पैक्ट कम आता है रेदर देन आपका जो लास्ट 36 मंथ की जो हिस्ट्री होती है उसका इम्पैक्ट आता है उससे ही। हाउ टू फाइल विद डिस्प्यूट विद सिविल। सिविल के अंदर मतलब जो सिविल रिपोर्ट होता है, मैं आपको ये मतलब एक प्रेजेंटेशन मतलब एक सिविल स्कोर शेयर करना चाहता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन पे हाउ टू फाइल डिस्प्यूट विद सिविल वाला ओके स्क्रीन दिख रहा है सर। ओके। जैसे हाँ अभी दिखा। जैसे ये एक सिविल स्कोर है। आर यू सी माय सिविल स्कोर? हेलो? यस सर, लेफ्ट साइड में है। हाँ, ये सिविल स्कोर है जैसे प्रशांत आर पटेल। तो जैसे ये सिविल स्कोर में क्या हुआ है कि जैसे पार्टी का नाम था प्रशांत विनोद भाई पटेल और इसका इसका केवल पान कार्ड ही सही था और उसके अलावा वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अलावा जो भी था ये सिविल स्कोर में ऐसा हो गया था कि 134 सिविल 134 अकाउंट जो पार्टी ने लोन लिए ही नहीं थे पर उसके सिविल स्कोर में शो हो रहा था। जैसे उस पार्टी का नाम था प्रशांत विनोद भाई पटेल और प्रशांत रजनीकांत पटेल करके कोई दूसरे आदमी का सिविल स्कोर उसके अंदर जनरेट हो रहा। तो हमने उस टाइम जैसे हमने एक लिस्ट, एक अकाउंट हमने ये बनाए, मतलब एक एक्सेल शीट बनाई पूरी। आर यू सी माय एक्सेल शीट? यस सर, लेकिन पूरी विजिबल नहीं है सर, कॉलम सी तक विजिबल, बी एंड सी। तो उसके अंदर हमने सिविल डिस्प्यूट फाइल किया था। उसके बाद हमने नया सिविल रिपोर्ट मेरे पास आया है। आई विल शेयर दैट सिविल स्कोर। सॉरी, ये आर यू सी दी सिविल रिपोर्ट 71772। यस सर। तो ये है कि भाई उसके अंदर केवल वो पार्टी ने बोला कि केवल मेरे 6 ही अकाउंट ऐसे है पूरे सिविल में जो मेरे है, बाकी 134 अकाउंट उसका है ही नहीं। देन आफ्टर आई फाइल द डिस्प्यूट विद द सिविल, then after if you see that report, the same PAN number, are you CUVPP
79A, the same PAN card, sorry, ये देखो, ये भी उसका ही है, CUVPP 8979A। और काफी बार ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे का अकाउंट हमारे अंदर शो होता है। हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ, तो ये जैसे हाउ टू फाइल डिस्प्यूट विद दी सिविल। Have you seen my presentation? Okay. There are many, you will file the civil report regarding the personal information, date of birth, like contact detail, address, and many kind account information. So individually, there are the multiple, in your civil score there are showing duplicates of your account। मतलब आपका अगर ICICI बैंक की किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो वही अकाउंट दो बार दिखाई दे रहा है, दो बार लोन दिखाई दे रहा है। तो वी विल फाइल डिस्प्यूट विद द सिविल ऑफ डुप्लीकेट्स ऑफ अकाउंट इश्यू रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब किसी और का पान कार्ड आपके अंदर शो कर रहा है, किसी और का वोटर ID आपके अंदर शो कर रहा है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे मेरे पास यूपी बिहार के केस आते हैं, तो उसमें कैसे होता है कि जैसे हमारे गुजरात में ऐसा भी होता है कि भाई पंकित अमित भाई पटेल, पंकित अमित भाई शाह, तो पर जैसे यूपी बिहार में क्या जैसे अरुण सिंह या राजपाल यादव, मतलब ऐसे शॉर्ट नेम होते हैं। तो ऐसे नाम किसी के भी होते हैं, जैसे अरुण कुमार, मनोज कुमार। तो उनका क्या होता है, किसी और के मनोज कुमार का भी आपके अंदर शो कर रहा है, तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है। जैसे हमने किसी में गारंटी दिया है और हम उसमें हम इंडिविजुअल लायबल बता रहे हैं सिविल स्कोर में, तो उसमें भी कैसे करेक्ट किया जाता है। मतलब अगर किसी दूसरे का अकाउंट हमारे में शो हो रहा है, दैट अकाउंट दैट आर नॉट बिलोंग टू अस, अगर आपका अकाउंट क्लोज है, मतलब आपने सेटलमेंट नहीं किया है, राइट ऑफ नहीं करवाया बैंक के साथ, फिर भी आपके सिविल स्कोर में राइट ऑफ या सेटल आता है, तो उस केस में कैसे हम डिस्प्यूट फाइल करते हैं वो भी है। तो सिविल के अंदर अगर डिस्प्यूट से भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो अगर आपको श्योर है कि भाई नहीं ये अकाउंट, ये सिविल ने या बैंक ने गलत इंफॉर्मेशन दिया है सिविल को, तो आप उसके आगे एस्केलेशन भी फाइल कर सकते हैं। तो एस्केलेशन में भी 3 लेवल है, एस्केलेशन 1 2 3। तो अगर जैसे हम केस लड़ते हैं निचली कोर्ट में, उसके बाद ऊपरी कोर्ट में चले जाते हैं, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही अलग अलग लेवल की उनके अंदर भी एस्केलेशन है। तो हम डिस्प्यूट के आगे भी काफी बार हम एस्केलेशन फाइल करते हैं। काफी बार ऐसी भी चीज होती है कि सिविल आपके अकाउंट में शो कर रहा है बराबर अकाउंट, पर अगर हम डिस्प्यूट फाइल करने जाते हैं तो तब वहां से एरर आती है, दिस अकाउंट नॉट रिफ्लेक्ट इन योर सिविल स्कोर, बट आपके स्कोर के अंदर वो दिखाई दे रहा है। तो उस केस में हम कैसे काम करते हैं वो भी हम करवाते हैं। फिर अगर कॉर्पोरेट सिविल है, अगर रदर देन पार्टनरशिप फर्म का सिविल है और उसके अंदर किसी और का सिविल स्कोर, मतलब किसी और कंपनी का सिविल स्कोर शो हो रहा है, तो इश्यू रिलेटेड पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सबका सिविल स्कोर में अगर इनएक्यूरेसी है तो उसमें भी हम डिस्प्यूट फाइल करके सिविल को बता के, सिविल भी चेक करता है, सिविल भी रिस्पेक्टेड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बताता है कि अगर ये गलत, ये पार्टी बोल रही है कि ये अकाउंट इसका नहीं है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो सिविल स्कोर अपडेट हो जाता है। जैसे ये है सिविल डिस्प्यूट प्रोसेस, जैसे हमने डिस्प्यूट फाइल किया
जनरली ये 30 days की प्रोसेस है. CIBIL will provide the data to that financial institution, and that financial institution share the information if they accepted your institution. Just one minute. Hello, एक second. अभी दिख रहा है? Okay. जैसे जैसे ये है टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट इन द कॉर्पोरेट एंड कॉमर्शियल, मतलब इश्यू रिलेटेड डुप्लीकेट्स, मतलब इश्यू रिलेटेड कंपनी इंफॉर्मेशन डिटेल. जैसे आपके अंदर आपकी कंपनी का नाम है वैभव कंस्ट्रक्शन, बराबर, पर किसी और कंपनी मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है या पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें सेपरेट पान कार्ड नहीं होता. प्रोप्राइटरशिप का सेपरेट पान कार्ड नहीं होता, पर प्रोप्राइटरशिप भले ही वो इंडिविजुअल है, उसका भी सिबिल स्कोर निकलता है. एक चीज ध्यान में रखने की बात है, इंडिविजुअल सिबिल स्कोर उसका अलग है, भले ही सेम पान कार्ड है, पर उसका कॉर्पोरेट सिबिल अलग होता है. मैं आपको एक शेयर करता हूँ एक चीज अभी. उसके बाद जैसे मेरे एक पार्टी था वैभव कंस्ट्रक्शन, मैं एक केस स्टडी बता रहा हूँ. तो वैभव कंस्ट्रक्शन वो जैसे नॉर्थ गुजरात थराद है, वहाँ की मतलब थराद डीसा वहाँ की पार्टी. उसके अंदर सिबिल स्कोर मतलब कोई वीर कंस्ट्रक्शन करके कोई कंपनी थी मध्य प्रदेश बालाघाट, उसका सिबिल स्कोर शो हो रहा था, मतलब उसके लोन अकाउंट शो हो रहे. तो बैंक ने निकाला सिबिल स्कोर, मेरे पास पार्टी आई, पार्टी ने बैंक का सिबिल स्कोर मेरे को शेयर. तो बैंक का सिबिल स्कोर क्या होता है कि जैसे मैं HDFC बैंक, अगर आपने मेरे यहाँ लोन के लिए अप्लाई किया, तो आपने पास्ट में अगर HDFC से लोन लिया तो वो अकाउंट का नाम और नंबर दिख रहा होगा. पर अगर कोई दूसरी बैंक है ICICI बैंक, अगर उस सिबिल में है तो उस सिबिल में मेंबर्स नेम नॉट डिस्क्लोज, अकाउंट नंबर नॉट डिस्क्लोज, बट टाइप ऑफ लोन, सैंक्शन अमाउंट, राइट ऑफ स्टेटस, वो सब दिखाई देगा. पर वो कौन सी बैंक है, तो हमको उसके लिए हमको सिबिल स्कोर परचेस करना पड़ेगा. तो वो सिबिल स्कोर हम परचेस करते हैं, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई हमको ये लोन अकाउंट हमारा नहीं है, तो उसके बाद हम सिबिल स्कोर डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं. तो ये है. अगर मैं आपको बाद में मतलब देयर आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट FAQ, कैन आई डिलीट योर चेंज, मतलब आपकी अगर मतलब काफी लोग पूछते हैं कि कितने साल के बाद आपका सिबिल स्कोर या आपका जो लोन अकाउंट दिख रहा वो डिलीट हो जाएगा. मैं बोलता हूँ कि 25 साल 50 साल भी अगर आपका हिस्ट्री है वो कभी डिलीट नहीं हो सकता. सिबिल नेवर डिलीट दी रिकॉर्ड ऑफ यू, बराबर. हाँ, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि सिबिल स्कोर या सिबिल का जो रैंक है, अगर कंपनी में देखे जाओ तो सिबिल का रैंक है वो आपका जो 36 मंथ की और स्पेशली रैंक में 24 मंथ की आप क्रेडिट हिस्ट्री चेक किया जाता है, या उसके बेसिस पे सिबिल स्कोर या रैंक जनरेट होता है. काफी बार हम सिबिल स्कोर जनरेट करते हैं तो उसके वक्त NA या NH लिख के आ जाता है. उसका मतलब ऐसा होता है कि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, या आपका पिछले 3 साल में आपकी हिस्ट्री है, रिपोर्ट जनरेट होगा, बट पिछले 3 साल में आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई किया नहीं है, आपका पूरा कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, बराबर. तो उसके लिए NH मतलब देयर इज मतलब कोई खराब नहीं माना जाता है, पर लैंडर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि मतलब डिफिकल्टी होती है कि आपको कितनी क्रेडिट दिया जाए, आपको कितनी लोन दिया जाए. एक चीज होती है कि अगर जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो दो चीजों पे ज्यादा बैंक फोकस होता है. एक तो होता है सिक्योरिटी प्लस रीपेइंग कैपेसिटी. मतलब बैंक अगर किसी को पैसा देता है
तो वो पैसा कैसे रिकवर होगा। और दूसरी चीज कि भाई उसका क्रेडिट वर्दीनेस या क्रेडिट हेल्थ चेकअप क्या है, तो वो है दूसरी चीज है कि भाई उसको मैं उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसने पास्ट में लोन लिया है तो कैसे उसने रीपेमेंट किया है या उसने डिले पेमेंट किया है, कितने दिन डिले पेमेंट किया है। तो वी हैव टू दे विल चेक योर क्रेडिट हिस्ट्री। काफी बार लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ कैन हाउ कैन लो स्कोर इम्पैक्ट योर डेली लाइफ। So, first of all, there are the low credit approval of the loan and financial institution. लो मतलब हायर इंटरेस्ट रेट, अगर आपका लो सिबिल स्कोर है तो जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक से तो काफी बार लोन नहीं मिलती है, काफी बार एनबीएफसी से हमको लोन लेना पड़ता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हायर in terms of the बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड देन भी काफी बार अभी है कि भाई जैसे आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो प्री लोन अप्रूवल मतलब तो वो भी काफी बार, अगर आपका लो सिबिल स्कोर है तो प्री अप्रूवल लोन भी नहीं मिल सकती है। या तो काफी बार ऐसा भी होता है कि आज की डेट में जैसे कोई भी ऐप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ऐप ओपन करते हैं, प्री अप्रूवल कार लोन, बाइक लोन, टू व्हीलर लोन या होम लोन भी मिलती है। तो उसमें क्या होता है, आपका प्री अप्रूव हो जाता है तो आपको केवल उसके बाद केवल जो लीगल मतलब जो फ्लैट या जो प्रॉपर्टी है उसकी लीगल फाइल ही सबमिट करनी होती है, उसके बेसिस पे वो लोन अप्रूव हो जाता है। तो आज की डेट में प्री अप्रूवल लोन भी काफी बार मिलती है। So what is credit hungriness? If you apply for multiple login या uh, uh, multiple way to apply the single loan, मतलब आपने एक्सिस बैंक में लोन डाल दिया है, आईसीआईसी में, एनबीएफसी में, अगर सभी जगह एक साथ लॉगिन होता है तो दैट और बैंक और फाइनेंशियल को भी वो चीज दिखती है कि आपने पिछले एक साल में कितनी बार लोन के लिए अप्लाई किया या रिसेंटली आपने एक साथ कितनी जगह लॉगिन किया। काफी बार अनसिक्योर लोन में ऐसा होता है कि एक साथ मल्टीपल लॉगिन करते हैं कि भाई 5 लाख यहाँ से लिया, 5 लाख यहाँ से लिया, उसका फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं बैठ पाता और उसको ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो उस टाइम भी काफी जो स्मार्ट लोग होते हैं वो मल्टीपल लॉगिन करते हैं, पर अगर जिसका स्कोर कम है तो उसको मैं बोलता हूँ कि मल्टीपल लॉगिन ना करें या अनसिक्योर लोन के लिए अप्लाई कम करें, हो सके तो सिक्योर लोन के लिए अप्लाई करें। अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा कम हो गया, आपको लोन नहीं मिले तो आप क्या करोगे। तो उस समय मैं अपने क्लाइंट को भी सलाह लेता हूँ कि भाई अगर आपको स्कोर धीमे बढ़ाना है तो आप किसी एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड या ओडी ले सकते हो या फिर गोल्ड लोन ले सकते हो। गोल्ड लोन में वो लोग क्रेडिट रिपोर्ट कम देखते हैं और उसका उसका रिपोर्टिंग हर महीने होता है। तो एक बार अगर आपका सिबिल स्कोर कम हो गया तो आपको अगर वो चीज चेंज नहीं होती है, जैसे सिबिल के अंदर जो डीपीडी पोर्शन होता है, डे पास्ट ड्यू, वो चेंज नहीं हो सकता है अनलेस एंड अनटिल वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोले कि हाँ ये मेरी गलती है या हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ से गलती हो गई, तो वो चीज चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये चेंज नहीं हो सकता। तो बिहेवियर एस्पेक्ट को हमको सुधारना, तो जैसे पास्ट में हो गया और अभी नई हिस्ट्री जनरेट करनी है तो उस टाइम हम क्या करें। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे 30,000 की एफडी हो, उसके सामने 25,000 का क्रेडिट कार्ड, तो वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस समय क्रेडिट स्कोर पे डिपेंडेंसी कम हो जाती क्योंकि उनको एफडी अगेंस्ट ही क्रेडिट कार्ड देना है। तो उनको अगर उन्होंने पेमेंट डिफॉल्ट किया तो बैंक विल टेक अवे योर एफडी। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई कैन यू बाउंस बैक योर लो सिबिल स्कोर? यस, यू कैन बाउंस बैक योर लो सिबिल स्कोर। मतलब धीरे धीरे आप जो भी आपका ओवरड्यू है पहले उसको खत्म करो, उसके बाद
अपना जो रिकॉर्ड है धीमे धीमे उसको सुधारो और टाइमली पेमेंट करो, प्रोडक्ट मिक्स को सुधारो, बहुत ज्यादा अनसिक्योर लोन पे आपकी जो डिपेंडेंसी है तो उसको सुधारो, तो इट विल बी इफेक्ट योर सिबिल स्कोर। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आपका सिबिल स्कोर मतलब आपकी इनकम अगर ₹1,00,000 है तो आपकी टोटल EMI 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज माई पर्सनल बिलीव। मतलब देर आर सर्टेन लिविंग एक्सपेंस, there are certain living expense of your income, so bank will always calculate कि भाई आपका 20 से 25,000 अगर आपका लिविंग एक्सपेंस है, अगर आपका 1,00,000 रुपया आपका इनकम है या सैलरी है तो 20 से 25,000 रुपया आपका लिविंग एक्सपेंस है, तो आपकी अगर EMI वो बैठा कि भाई 60%, जैसे काफी बैंकों में 60 मतलब आपकी इनकम का 60% से तक EMI दे सकते हैं, तो वो देखते हैं कि पास्ट मतलब लिविंग एक्सपेंस से अलावा और कौन कौन सा ऑब्लिगेशंस है और कौन कौन सी लोन है, तो वो भी रिड्यूस होती है कि आपकी एलिजिबिलिटी फाइनेंशियल्स पे उसका रिड्यूस होता है, तो वो भी एक चीज है कि आपका कैसे तो मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर आपको अच्छी तरह से मतलब तो मतलब सुखती जीव है तो 30% भी વધારે તમારી EMI ना हो, एज पर माय बिलीव। एंड તમારું જે પ્રોડક્ટ મિક્સ आपका जो अगर प्रोडक्ट मिक्स है वो भी डिपेंड्स ऑन दी सिक्योर रेदर देन अनसिक्योर। आपको काफी बार हमको भी मैसेज आता है कि भाई क्लाइंट को भी मैसेज आता है कि भाई आपकी लिमिट 1,20,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दीजिए अगर आप एक SMS करते, तो करना चाहिए अप्लाई, ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि अगर 2 लाख आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो गई तो आपका जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ा दो, तो यही चीज हमको हमारे सिबिल स्कोर में ये इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई then share एक second, I will share the company credit report। कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट क्या कैसे मतलब होता है, तो मैं वो चीज बताना चाहता हूँ। जैसे ये सब, आर यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. जैसे ये है, साइड में स्क्रीन खुल रहा है सर, बड़ा कीजिए ना इसको। हाँ अभी आपको कैसे बड़ा करना है, राइट क्लिक कीजिए, शायद वहां पे ऑप्शन कुछ आएगा। एक सेकंड। नाउ इट्स Yes, sir. परफेक्ट। Yeah. ये है कंपनी का एक रिपोर्ट है, जैसे ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जस्ट अ मिनट। कंपनी का नाम है वैभव कंस्ट्रक्शन। जैसे ये बनासकाठा की थराद बनासकाठा की पार्टी है, ये हमने परचेस किया हुआ रिपोर्ट है, ये बैंक से निकाला हुआ नहीं है। बैंक का निकाला हुआ भी रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा वो कैसा होता है, ये हमने परचेस किया हुआ रिपोर्ट है। जैसे कंपनी का नाम है वैभव कंस्ट्रक्शन, तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो काफी ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो उसकी नहीं है। जैसे ये है मध्य प्रदेश बालाघाट, आप आर यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. तो ये है
दूसरी चीज है कि पार्टी का अंदर जो प्रोमोटर्स है वो है, उसका नाम है करसन भाई देवजी भाई राजपूत। ये पार्टी का, सॉरी, ये पार्टी का प्रोपराइटर का नाम है। और उसके अंदर शो कर रहा है पार्टनरशिप फॉर्म वीर कंस्ट्रक्शन करके है, बराबर। मैं आपको बताऊंगा नीचे। ये जो पर्सन है विनोद कुमार जैन, विजय जैन, कैलाश जैन, तो ये सब जो है ये उनके रिलेटेड ही नहीं। पार्टी को पहचानती भी नहीं है। डायरेक्ट, देयर आर नो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशनशिप विद देम। सो देन आफ्टर वी सी द रिपोर्ट, the these are the summary of the loan summary. जैसे L&T Finance, loan account number, type of loan, sanction amount, status, ये सब जो है HDFC इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, कॉमर्शियल फाइनेंसिंग, ये सब जो है ये इसमें अकाउंट नंबर वो सब मेंशन हो जाता है। जबकि मेंबर्स का जो रिपोर्ट होता है उसमें ये सब मेंशन नहीं होता है कि कौन सी बैंक है या कौन सा अकाउंट है। हाँ, ये बताते हैं कि भाई ये लोन है, ये चल रही है, उसमें ये राइट ऑफ या उसमें ओवर ड्यू है। ये डेली कौन सी रिपोर्ट, किसमें डेली कौन सी रिपोर्टिंग है, ये है। और क्लोज, ये किसमें लोन रेगुलर चल रहा है, ये है। उसके बाद हर एक लोन का इंडिविजुअली नीचे शो कर रहा है। जैसे L&T फाइनेंस है, जैसे 19,71,000 ની લોન છે, 19,71,000, 19,71,000 उसकी लोन है। ये जो पोर्शन है ये पेमेंट हिस्ट्री है, जो पेमेंट हिस्ट्री, तो उसको हम DPD बोलते हैं, डे पास्ट ड्यू। अगर आपने डिले पेमेंट किया है या है, अगर इसमें अगर ओवर ड्यू है तो वो भी इसमें शो करता हो। जैसे HDFC, ये सब। तो ये पार्टी ने बोला कि ये जो लोन अकाउंट हमारे में शो हो रहा है तो वो हमारा नहीं है। एक सेकेंड, कंपनी जैसे ये बैंक का निकाला हुआ सिबिल है। जैसे ये, तो ये कंपनी का पहले तो ये वैभव कंस्ट्रक्शन प्रोपराइटर्स है, यहाँ पे पार्टनरशिप शो कर रहा है, वो एक गलत है। उसके अलावा काफी सारे जो पान कार्ड है वो दूसरे के बता रहे हैं, तो ऐसा है कि ये एक पता है। दूसरी चीज है कि हाँ, जैसे एक ये रिपोर्ट मेरे पास है घनश्याम इंडस्ट्री पर। आर यू सी, हेलो, आर यू सी माय दिस स्क्रीन, घनश्याम इंडस्ट्री रिपोर्ट? Yes, sir. Yes, sir. सो इन दिस पार्टी ने ऐसा बोला था कि भाई ये हमने एक ही बार बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था और हमारे अंदर एक सिबिल स्कोर मतलब जो शो हो रहा है, मतलब कोई छोटी लोन ऐसी थी कि घनश्याम इंडस्ट्री नाम की दूसरी कोई प्रोपराइटरशिप फर्म थी, वो अहमदाबाद में ही थी, पर वो दूसरी बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में थी। जैसे दरियापुर ब्रांच में उनका अकाउंट चल रहा था और किसी दूसरी ब्रांच में उसका लोन अकाउंट उसका शो हो रहा। तो ये उसमें एक चीज थी कि भी ये बहुत मतलब बहुत छोटी अमाउंट की 2,50,000 की जो उनकी लोन में सबस्टैंडर्ड मतलब लॉस मतलब NPA बता। और पार्टी का ऐसा कहना था कि भाई ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो ये लोन है ये हमने कभी आज तक कभी लिया ही नहीं। उसके अलावा जो भी है बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा हमने कोई मतलब सारी फैसिलिटी हमने 5 साल या 10 साल पहले ही क्लोज कर दिया।
तो तो ये पार्टी का हमने डिस्प्यूट फाइल किया था, एंड देन आफ्टर इट विल बी अपडेट इन आवर सिविल स्कोर, मतलब जैसे और अभी मैं इंडिविजुअल का भी सिविल स्कोर बता रहा हूँ, भाई हमको कैसे सिविल स्कोर पढ़ना चाहिए। पहले मैं एक एक्सपीरियंस का सिविल स्कोर आपको बताऊं। ये सिविल जैसी ही संस्था है एक्सपीरियंस, जो क्रेडिट ब्यूरो का काम करती है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यही इसी पार्टी जिगेन, ये पार्टी का नाम है, सॉरी सॉरी, हाँ ये जिगेन, हाँ जिगेन, हाँ ये पार्टी का नाम है जिगेन शाह। अभी इसमें ऐसा है, ये जो अकाउंट शो हो रहा है फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक्चुअली कोटक महिंद्रा बैंक का सब्सिडरी कंपनी है, और उसने ये जो R1CP बता रहा है, तो वो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का उसने टेक ओवर किया। तो हमको ऐसा है कि मतलब बहुत छोटी अमाउंट के लिए उसका सिबिल स्कोर, ये आप देख रहे हो 900 डेज 900 डेज। हेलो हेलो, यस यस सर, सर। दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये जो उसके सिबिल स्कोर में 900 डेज ये शो हो रहा था। So then after we have to first we have to deal with the Kotak Mahindra Bank, yeah, Phoenix ARC. Then I generate the pre-NOC letter. Then I make the payment with the client, and then we generate the post NOC. तो अगर उसका स्कोर मैंने ये निकाला था उसके बाद वाला, तो ये फोनिक्स एआरसी में जिसका स्कोर आप देख रहे हो, ये अपडेट हो चुका है। इसके बाद उसके यहाँ पे राइट ऑफ स्टेटस या सूट यहाँ पे ये नहीं दिख रहा, तो ये बाद वाला है। तो एक चीज मैं आपको और जैसे ये समीर ठक्कर करते हैं, तो उसके भी सिविल स्कोर के अंदर ये प्री एनओसी लेटर में आपको बता, सॉरी ये प्री एनओसी क्लोजर लेटर, जैसे ये एक प्री एनओसी लेटर होता है बराबर, उसमें जैसे उसका पेमेंट हो रहा था 18,000 के आसपास, पर मैंने बैंक के साथ नेगोशिएशन करके 13,000 में ये क्लोजर बता रहा है, क्लोजर है सेटलमेंट नहीं है। तो क्लोजर करवाया है कि भाई अगर अगर 13,000 रुपीज अगर आप इस डेट से मतलब इस तारीख तक आप भर दोगे तो ये क्लोजर हो जाएगा। अभी मैंने एक 13 लाख का केस किया था, मतलब पार्टी राजकोट की थी और पार्टी अभी केरला रह रही, तो उसका 3,54,000 समथिंग आउटस्टैंडिंग कोटक महिंद्रा बैंक में था। मतलब उसका टेक ओवर ओरिजिनली बजाज फाइनेंस का, तो बजाज फाइनेंस का पूरा पोर्टफोलियो अभी राइट ऑफ जो पोर्टफोलियो है वो कोटक ने लिया। तो उसका मैंने 68,000, मतलब मैंने 3 लाख से ज्यादा रुपए का उनको फायदा करवाया। तो यही चीज है कि जो वैल्यू एडिशन में करके देता हूँ क्लाइंट को, मतलब उसमें भी क्लोजर करवाता हूँ। मतलब एक फॉर्मूला होता है, हर एक बैंक का एक फॉर्मूला होता है, हर एक बैंक में नेगोशिएशन नहीं हो सकता। मतलब हर एक जैसे कोटक है, कोटक में एक फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल प्लस समथिंग, मतलब 20% 30% डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन अकाउंट। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि बैंक के साथ बैठकर वो पूछते हैं कि भाई इसमें कितना तक नेगोशिएशन हो सकता है।
तो बैंक बोलती कि ये हमारी लोअर लिमिट है, तो उस लोअर लिमिट से कम नहीं जा। पर अगर हम जैसे वो पार्टी जाएगी, वो बोलती कि भाई 3,54,000 रुपये भरवाना, और उसको 3 लाख में भी क्लोजर करते हैं, अगर वो मैं 68,000 में वही चीज में क्लोजर करवा देता हूँ, बराबर, तो मेरे पास एक सिबिल मैं आपको शेयर करता हूँ। आज यू सी दी सिबिल स्कोर 546, दीपक जंतीलाल पाला। हेलो, ठीक है, हेलो। ये कोटक महिंद्रा बैंक का उसने टिको, ये BF लिखा है। हेलो उमेश जी, यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने बजाज फाइनेंस का ओरिजिनल पोर्टफोलियो था, उसने टेक ओवर किया था। उसका 3,55,000 समथिंग आउटस्टैंडिंग बता रहा था, और यहाँ राइट ऑफ बता रहा है, बराबर। तो वही चीज जो मैंने उसका 68,000 ये मैंने क्लोजर करवाया। ये जो है कि भाई कंपनी का अगर 3,55,000 आउटस्टैंडिंग है, पार्टी मान लो जाती है, अगर वो 3 लाख में भी सेटल करती है तो सेटलमेंट लिख के आता है, ठीक है। और जैसे अगर कोई भी इसके अंदर दूसरा जो कंसल्टेंट है वो अगर इसको कंप्लीट कराता है, फिर वो राइट ऑफ नहीं आता है, तो नहीं, उसका क्या प्रोसीजर है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पार्टी जाती है, पर पार्टी को पता नहीं होता है कि हर एक बैंक का फॉर्मूला क्या होता है, कि भाई हर एक, जैसे काफी बार ऐसा भी होता है कि प्रिंसिपल प्लस 1.5 मतलब 50%, मतलब जो प्रिंसिपल है इंटू मल्टीप्लाई 1.15, तो उसमें भी क्लोज हो सकता है, मतलब 15% ज्यादा लेकर वो क्लोज कर देते हैं। मतलब अगर आपका इसका हम देखेंगे, बराबर, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट है 54,000 है, बराबर, उसका 1.15 मल्टीप्लाई करके जो एक्सेस आता है वो अपने देके क्लोज करा सकते हैं। हाँ, मतलब काफी बार 120% पे भी क्लोज हो जाता है, मतलब 54,990 इंटू 1.20 करके जो अमाउंट आती है उस पे भी राउंड फिगर में कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक बैंक में, उसमें ऐसा भी होता है कि जितना रिसेंट होता है उतना नेगोशिएशन पावर कम हो जाता है, अगर जितना पुराना है उतना नेगोशिएशन पावर ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही चीज है कि भाई हम कराते हैं, जैसे इसके सिविल में बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे ये कोटक का था, फिर एक SBI का भी था, तो SBI का मैंने 41,000 में क्लोज करवाया, जैसे इसमें 98,000 शो हो रहा है राइट ऑफ में, बराबर। एक जो आप बीच में बता रहे थे कि जैसे ये जो लिटिगेशन जो भी आती है उसको अपने जो फाइल करते हैं उसका क्या प्रोसीजर है, कहाँ पे फाइल होता है और आगे उसको कैसे करना चाहिए? जैसे और भी जो अपने मेंबर्स हैं, मान लो सिविल में कोई क्लाइंट के अगर डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए उसको कौन सी साइट पे या कैसे जाना चाहिए? इसमें ऐसा है कि सिविल मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि कोई भी थर्ड पार्टी साइट या पैसा बाजार है या बैंक बाजार है या कोई भी थर्ड पार्टी साइट को से सिविल स्कोर कम परचेस किया करो। हमेशा सिविल परचेस करो तो सिविल स्कोर से ही परचेस करो, बराबर। और ओके, काफी सिविल से ही परचेस करो, या एक्सपीरियन या इक्विफैक्ट से भी परचेस कर सकते हो। दूसरी चीज होती है कि काफी बार ऐसा भी होता है कंसल्टेंसी में
कि एक अकेला डिस्प्यूट फाइल करना मतलब वो सब सही नहीं है। उसका सिविल स्कोर का मॉनिटरिंग करना भी अच्छा है, मॉनिटरिंग भी करते हैं। काफी बार एक चीज डिस्प्यूट सिविल से भी फाइल कर सकते हो, सिविल में डिस्प्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरी चीज है डिस्प्यूट हमेशा ऐसा है कि वो टाइम कंज्यूमिंग भी काफी बार होता है। तो काफी बार क्लाइंट हमारे साथ गलत भी बोलता है कि भाई हमने ये लोन लिया नहीं, जबकि उसने किसी में को एप्लीकेंट या गारंटी दिया होता है। तो हम उसको भी बताना है कि भाई डिस्प्यूट जो है वो आपको श्योर होना चाहिए कि अगर ये मैं फाइल करूंगा तो वो रिस्पेक्टेड बैंक को वो निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, काफी बार हम बैंक से भी बात करते हैं कि भाई ये लोन किसके नाम का है या उसका कोई एविडेंस। अभी मेरे पास एक केस है, मैं आपको एक शेयर करता हूँ कि एक एक लाइव केस है। केतन कांतिलाल शाह करके, मैं आपको सिविल स्कोर शेयर करता हूँ। उसमें क्या हुआ था कि LIC हाउसिंग में एक लोन दिया था केतन देवजी भाई शाह, ऐसा कुछ नाम था। तो वो पार्टी रहती थी धंधुका और ये पार्टी रहती थी अहमदाबाद। तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया LIC हाउसिंग में। तो हमको मालूम चला कि एक LIC की मतलब हमको मालूम चला कि ये केतन शाह के लोन दिया गया। पर उसको हमने पूछा गया कि भाई आपने कुछ मॉर्गेज किया होगा या कुछ दस्तावेज किया है। तो हमको वो बोलते हैं कि पहले तो उन्होंने हमको सपोर्ट नहीं किया। फिर हमने बोला कि आपने कुछ मॉर्गेज किया या घर गिरवे या कुछ भी किया, क्योंकि ये बोलते हैं कि हम उस टाइम तो पैन कार्ड भी नहीं था, आधार कार्ड भी नहीं था। उस टाइम हमने लोन लिया था पर उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। फिर हमने अपने खुद का इन्वेस्टिगेशन किया तो हमको पता चला कि ये एक LIC की पॉलिसी के अगेंस्ट में इसको लोन हाउसिंग लोन दिया गया है, LIC हाउसिंग। तो उसका हमने पॉलिसी की जेरोक्स निकाल दिया, तो फिर भी वो लोग नहीं मान रहे थे। फिर हमने कंप्लेन RBI में भी की, तो RBI में भी उन्होंने जवाब दे दिया कि ये पार्टी का ही। फिर हमने LIC हाउसिंग की ऑफिस में जाकर बोला अगर आप हमसे पैसे मांगते हो तो आ जाओ हमारे घर पे पैसे मांगने के लिए। तो वो बोलते हैं कि आपका ही, आप 5 लाख रुपए अभी भर दो। फिर हमने थोड़ा धमकी दी कि भाई अगर ये है तो हमको प्रूव करो। देन आफ्टर जो उनके जो मेन जो चीफ जो गुजरात हेड है उसको हमने रजूआत की, तो उन्होंने भी बोला कि भाई ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं वही है। फिर हमने बोला कि अगर हम हमारी जो है कि अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो हम आपको समन्स देंगे। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उनको लगा कि भाई ये आदमी हम सही है। देन आफ्टर इट विल बी रिफ्लेक्ट, मतलब हमारे सिविल स्कोर से हट गया। तो मैं आपको सिविल स्कोर उसका पूरा ना सिविल स्कोर दिखाता हूँ। ये उनका सिविल स्कोर ऐसे, जैसे उनकी ये लोग LIC हाउसिंग की ये लोन है, ये उन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं था। पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया था उस टाइम। तो LIC की एक पॉलिसी, सॉरी, LIC की पॉलिसी हमारे हाथ में उस टाइम। तो ये उसकी पॉलिसी है LIC का। हमने ये पॉलिसी के अगेंस्ट में ये लोन दिया गया है। ऐसा भी केस होता है और काफी सारे मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं। मतलब लाइव केस अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा पता चलेगा। और सिविल स्कोर के अंदर जैसे ये आपको बताता हूँ, ये उसका उसके बाद वाला स्कोर है, उसका जो हमने अपडेट करा है उसके बाद वाला। ये काफी रिसेंटली केस अभी जून महीने में ही हुआ है, तो उसमें LIC हाउसिंग निकल चुका है। और दूसरी चीज है कि ये क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है सिविल स्कोर में, जैसे ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल मतलब जेंडर, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी सब कुछ दिखाई देता है। आधार कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन
दूसरी चीज है ये कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में आपका एड्रेस वगैरह, आपका मतलब आप जिस जगह काम करते हो उस जगह का भी एड्रेस काफी बार शो करता है। जैसे ये पार्टी का ऑफिस एड्रेस है, ये रेसिडेंशियल एड्रेस है, तो वो ही चीज है। और आपकी कंपनी का नाम क्या है वो सब, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, और फोर्थ इंफॉर्मेशन है अकाउंट नंबर, आपने कौन कौन सी बैंक से लोन लिया है वो, और सबसे लास्ट जो है इंक्वायरी इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको बता दूं, तो आपने कौन कौन सी, ये पार्टी को सबसे पहले पता चला मार्च महीने में कि जब आईसीआईसी बैंक से उसने लोन लिया, तब उसको पता चला कि कोई एलआईसी की उनकी लोन चल रही है, उसमें ओवरड्यू है या किसी लोन चल रही है। फिर हमने सिविल रिपोर्ट परचेस किया, और परचेस करने के बाद हमको मालूम चला कि ये प्रॉब्लम एलआईसी का है। तो ऐसे भी कई सारे केस है। ऐसे भी केस है कि जैसे ये एक ही पर्सन के, जैसे सिविल का स्कोर आ रहा है 736, तो मतलब 700 से ऊपर अच्छा स्कोर माना जाता है, और उसी पार्टी का एक्सपीरियंस भी स्कोर अच्छा आ रहा है, सॉरी एक्सपीरियंस स्कोर भी अच्छा आ रहा है, 688 समथिंग है, और बट उसका बैंक ने, पीएनबी बैंक ने इक्विफैक्स रिपोर्ट निकाला। ये इक्विफैक्स भी एक कंपनी है, तो इक्विफैक्स में उसका ऐसा है कि उसका स्कोर 449 ही है, उसके कारण उसका लोन रिजेक्ट हो गया। तो काफी बार ऐसा भी होता है, सिविल आपका अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, बट इक्विफैक्स आपका अच्छा नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम आती है। काफी बार ऐसा भी होता है, क्रिफ, क्रिफ भी एक क्रेडिट ब्यूरो है, तो एक मैं आपको क्रिफ का भी रिपोर्ट आपको शेयर करता हूँ, बराबर। जैसे एक क्रिफ का क्रेडिट ब्यूरो है, मतलब क्रेडिट रिपोर्ट है, तो क्रिफ भी अपनी तरीके से अपना रिपोर्ट जनरेट बनाता है। तो क्रिफ आज की डेट में क्रिफ भी बहुत चल रहा है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोर रिलाई ऑन क्रिफ ऑल्सो। सबसे कम रिलायबल, मतलब बैंक ज्यादा कम निकालते वो है एक्सपीरियंस, पर एक्सपीरियंस में की जो मतलब बताने का जो तरीका है, सबसे इजीएस्ट वे है। अगर आप पूरा सिबिल स्कोर देखोगे, तो जैसे इंडिविजुअल का सिबिल स्कोर, किसी सिबिल स्कोर में समरी नहीं आता, तो मतलब एक्सपीरियंस में समरी तो होती है। तो ये एक्सपीरियंस का क्रेडिट ब्यूरो है, और काफी बार हम सबसे पहले एक्सपीरियंस निकालते हैं। दूसरी चीज है कि अगर हम सिबिल स्कोर जनरेट करते हैं तो क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम किसी पार्टी का सिबिल स्कोर निकालते हैं, तब कभी भी हमारा पर्सनल ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर नहीं देना चाहिए। जो बैंक में वो देता है ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो ही देना चाहिए। अगर किसी और ईमेल एड्रेस डाला या कोई और मोबाइल नंबर डाला, तो तुरंत ही पूछेगा कि आपका ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। तीसरी चीज, अगर उसका भी आपने स्किप करके पूछा, तो वो क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, ऑथेंटिकेट आंसर पूछेंगे सिबिल। तो ऑथेंटिकेट आंसर में क्या होता है कि आपने पास में लोन कहाँ से लिया है, आपका लोन का क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट क्या है, सेंक्शन अमाउंट क्या है, ये लोन कब क्लोज हुई है, कोटक महिंद्रा बैंक की लोन, कार लोन कब क्लोज हुई है, कौन सी साल में क्लोज हुई है, उसकी सेंक्शन लिमिट क्या है, ये सब सवाल जो होता है वो पूछते हैं। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि पार्टी, हम रिपोर्ट निकालते हैं और पार्टी ने मतलब कोई सीए के थ्रू मेरे पास आता है, और सीए किसी और कंसल्टेंट का नंबर या मोबाइल नंबर डाल के मेरे को दे देता है। मेरे को पता नहीं होता है कि ये उसका उसने दिया है। तो जब ऑथेंटिकेट सवाल पूछते हैं तो वो नहीं आता है, तो उसका उसका इम्पैक्ट पड़ता है।
आपके हिसाब से सर किसका रिपोर्ट जो है वो लोन लेने के पहले आपके हिसाब से किसी का मैं सिबिल एक हमको चीज निकालना मानता हूँ चाहिए? कि मैं सिबिल का ही मानूंगा। और दूसरी चीज है कि अभी एक रिसेंटली एक नया कॉर्पोरेट क्रेडिट रिपोर्ट में भी नया एक सिस्टम आया है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिबिल मॉनिटरिंग सिस्टम। पहले ये नहीं था, ये पिछले महीने जुलाई में ही आया है। और मैं अभी खूब प्रचार भी कर रहा हूँ उसका, कि जैसे पहले क्या था कि जैसे हम सिबिल का हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12,000 का, तो पूरे साल में वो 4 बार ही रिपोर्ट आपको देता था, बराबर। तो अभी क्या हुआ है कि उन्होंने भी एक क्रेडिट मॉनिटरिंग करने के लिए हर हफ्ते हम क्रेडिट रिपोर्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं। मतलब अगर रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमको चाहिए तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा टूल्स है। और इंडिविजुअल में तो सालों से है, पिछले 2 या 3 साल से हम अगर साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम हर एक दिन का अपडेट देख सकते हैं। पर हर एक दिन सिबिल स्कोर अपडेट नहीं होता है, ये भी एक गलत फहमी है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस डेट को ही रिपोर्टिंग होता है। हाँ, हालांकि किसी भी डेट को कोई भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर सिबिल को बोले कि भी ये चीज गलत है, अगर आप रिमूव कर दो, तो वो किसी भी डेट को रिमूव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई 30 तारीख को ही होगा कि 2 तारीख को ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये भी एक मिथ है कि 30 तारीख को ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने काफी बार सिबिल स्कोर कोई भी डेट को भी अपडेट करवाया है। तो मैं बैंक से ही सिबिल स्कोर अपडेट करवाता हूँ। मैंने मेरी बैंक के साथ एमपेनल है। ये बहुत सारे बैंक जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, सभी प्राइवेट बैंकों के साथ मेरा एमपेनल है, तभी मैं ये काम कर पाता हूँ। तो जैसे राइट ऑफ है, सेटल है, तो उसमें अकाउंट इंफॉर्मेशन मंगवानी पड़ती है बैंक से, तो वो वैसे तो नहीं देते। तो एक पैनल के थ्रू हम जाते हैं और उससे ही इंफॉर्मेशन निकल। सर एक क्वेरी है एक मेंबर की कि हाउ टू डाउनलोड सिविल रिपोर्ट फ्रॉम ट्रांस यूनियन वेबसाइट। आई हैव रजिस्टर्ड बट नॉट एबल टू फाइंड लिंक टू डाउनलोड यस पीडीएफ। यस, मैं बताता हूँ, चलो मैं लाइव बताता हूँ, एक सेकंड। डाउनलोड पीडीएफ निकलता है, जैसे मान लीजिए ये मैं क्या करता हूँ, अपने खुद की एक एक्सेल शीट रखता हूँ। अभी पिछले 6-8 महीने से बहुत मैं ऐसा है कि बहुत सारा सिबिल निकालने, हर हर दिन 5 या 6 सिबिल को नया निकालता हूँ। तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाता हूँ कि उसका लॉगिन। और क्या है कि जैसे मैंने उसका क्रिप निकाला, एक्सपीरियंस निकाला, सिबिल निकाला, इक्विफैक्स निकाला, तो वही चीज है। एक सेकंड मैं बताता हूँ। Have you seen my screen? नो सर। Now you see my screen? यस सर। जैसे ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है, कानपुर की है। जैसे मैंने उसका सिबिल स्कोर जनरेट किया, ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही परचेस किया हुआ है रिपोर्ट। ये कल का ही मैंने आपको बताया, ये 9/9 तारीख का, मतलब कल तो संवत्सरी था, उसके पहले, बराबर। तो ये रिपोर्ट है, जैसे यहाँ पे है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रिंट रिपोर्ट। जैसे प्रिंट रिपोर्ट आता है, तो, तो हमको क्या करना है, कंट्रोल P देना है।
और सेव एज ए पीडीएफ कर देंगे। आर यू गेटिंग? यस सर। तो जैसे यही जैसे ये पार्टी का नाम है अवनीश कुमार, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ये सन ऑफ संतोष कुमार कानपुर, ये सब इसका है बराबर। अकाउंट इंफॉर्मेशन ये है। सर एक दूसरा क्वेश्चन है, whether the civil or partner or the director impacts the corporate civil। यस, वो डायरेक्टर पार्टनर का इंडिविजुअल सिविल से फर्म की या कंपनी की सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है। पर ऐसा भी होता है काफी बार कि वो लोग जब हम अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तब वो लोग पर्सनल गारंटी या एप्लीकेंट बनते हैं उस समय, तो उसका पर्सनल में भी वो रिफ्लेक्ट होता है, वो कंपनी में भी रिफ्लेक्ट होता है, तो ऐसा भी होता है बराबर। सर एस्केलेशन के लिए जाना हो तो कब जाना चाहिए और कैसे जाते हैं, कैसे? आफ्टर द डिस्प्यूट, आफ्टर द डिस्प्यूट। तो कहाँ से फाइल करते हैं सर, नहीं, कहाँ डिस्प्यूट फाइल? क्लोज होने के बाद, हम्म, डिस्प्यूट अगर हम फाइल किया है और डिस्प्यूट क्लोजर स्टेटस आता है, उसके बाद जाना चाहिए। कहाँ से जाते हैं सर? साइट पे ही एस्केलेशन का दिया या अलग से कहीं फाइल करना पड़ता है? ना, साइट पे ही दिया हुआ है एस्केलेशन, सिविल पे लिखोगे तो मिल जाएगा। जो स्क्रीन ये जो दिख रही है, इसी स्क्रीन पे कहीं है क्या डिस्प्यूट वाला इशू, या अलग कहीं पे है? बताता हूँ, डिस्प्यूट तो यहाँ पे ही है, और अगर किसी दूसरे, मतलब हमने सिबिल डाउनलोड किया है, और अगर मान लीजिए हमने HDFC बैंक से वो सिबिल परचेस किया है, मान लीजिए कि मैं आपको सिबिल स्कोर शेयर करता हूँ, पार्टी इसका हमने HDFC से परचेस जैसे ये सिबिल स्कोर है, मतलब दोनों का सिबिल बना जैसा ही सब है, दोनों का बना पर हमने HDFC से परचेस किया है। ये सुनो, तो मतलब सिबिल ही रिपोर्ट समझो, खाली एक ये सिंबल ही डाल दिया, बोल दो। बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो कंट्रोल नंबर से भी हम डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं, इसमें डिस्प्यूट का ऑप्शन नहीं आता है, तो हम एक फॉर्म आता है सिविल डिस्प्यूट फॉर्म, अगर आप गूगल पे भी लिखोगे ना तो वो फॉर्म मिल जाता है, उसका डिस्प्यूट फाइल करने का तरीका अलग है। हाँ, सर मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, और अगर कोई ऐसा भी है कि अगर किसी के अंदर डाउट है, तो अगर मैं उसका सॉल्व कर, मतलब क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है, बोलिए। जैसे हेलो, जैसे काफी बार एक सिविल पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, मतलब एक सिविल पढ़ने के लिए, मान लीजिए किसी सिविल है, वो इंडिविजुअल सिविल, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक सिविल है वो 250 पेज का, तो उसको भी पढ़ना पड़ता है। उसका टोटल एक्सपोजर है 2,55,000, मतलब 255 करोड़, 255 करोड़ નું લોન એક્સપોઝર છે ટોટલ। जैसे ये सिबिल स्कोर है 557 पेज का है एक सिबिल स्कोर इंडिविजुअल का, तो उसको पढ़ने के लिए कम से कम मेरे को 3 से 4 घंटा लगेगा वो पढ़ने के लिए, तो पूरा रिपोर्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे हैं, और मैंने बहुत सारे रिपोर्ट भी निकाले हैं,
एक ही पार्टी का अलग अलग फैक्टर से भी हमने सिबिल स्कोर जनरेट किया है। जैसे एक लाइव बताता हूँ आपको सिबिल का, एक पार्टी का हमने उसने डिस्प्यूट का क्लोजर स्टेटस आया है। आर यू सी माय मेल एड्रेस? नो सर, Hello? मेल एड्रेस नहीं दिख रहा। सॉरी, मेल आईडी है, एक सेकंड। ये उसका हमने सिविल में डिस्प्यूट फाइल किया था, तो उसका उसके बाद इसमें ऐसा था, ये पार्टी बोल रही थी कि भाई हमने ये भी उत्तर प्रदेश की है, तो ये है, ये डिस्प्यूट के बाद ये आपको दिख रहा होगा। जैसे हमने फाइल किया था कि ये जो अकाउंट है वो हमारे नहीं है, बराबर। तो ये और एक चीज थी कि उसमें एक बिल सूट फाइल बता रहा था, जबकि वो सूट फाइल नहीं, अकाउंट क्लोज हो गया था। तो ये हमने ये चेंज हो गया, स्टेटस ऑफ द डिस्प्यूट चेंज टू द बराबर, चेंज टू नो सूट फाइल, बराबर। तो देन आफ्टर ये आप SBI का जो अकाउंट था वो उसने बोला था कि ये मेरा नहीं है। महिंद्रा में उसने बोला था शायद मैं गारंटर हूँ या नहीं हूँ, पर आप फाइल कर दीजिए कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, पर बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा बोला कि आप अ, अ, आप जो रिस्पेक्टेड महिंद्रा फाइनेंस से आप बात करके वो क्लोज कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि काफी बार ऐसा भी होता है कि हम डिस्प्यूट फाइल करते हैं, तो उसका अभी आपको परसों परसों का ही मैं बताता हूँ, मेरे पास है ये ये महाराष्ट्र की पार्टी है, बीड। तो उसका भी हमने डिस्प्यूट फाइल किया था ICICI बैंक में। देन आफ्टर इट विल बी चेंज इन दैट सिविल स्कोर, एंड सिविल डिस्प्यूट अगर चेंज होता है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्री सिविल स्कोर देता है, तो वो फ्री में देता है, उसका कोई चार्ज नहीं, वो आपके मेल आईडी पे आ जाता है, मतलब पार्टी के मेल आईडी पे आ जाता है। जो सिविल में डिस्प्यूट फाइल करते हैं, तो ये जो जो आपने अभी दिखाया कि मेल पे, वो सारा डिस्प्यूट हमें उसमें रीजन के साथ मेंशन करना पड़ता है डिस्प्यूट के टाइम पे, जो आप दिखा रहे थे उस समय। ऑब्वियसली तो वो एक बार स्क्रीन एक बार दिखाइएगा ना, जहाँ पे आप बता रहे थे कि डिस्प्यूट यहाँ से फाइल करते हैं। इसमें ऐसा होता है, जैसे इसमें एक फॉर्म है, ये पूरा पहले भरना होता है, ये सबमिट दबाओ, उसके बाद आगे का आता है। उसके बाद मतलब अ, वो पूछेगा आपको किस सेक्शन में आपको डिस्प्यूट फाइल करना है, अकाउंट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, और बराबर। तो अलग अलग सेक्शन वाइज में डिस्प्यूट होता है। ऑनलाइन ऑनलाइन ये जो डिस्प्यूट है, वो अपने कोई भी आदमी डिस्प्यूट फाइल कर सकता है, या मेंबरशिप कोई भी रहेगा तो आदमी ही जिसको नॉलेज होता है सिविल का, वो कोई भी आदमी फाइल कर सकता है, बराबर। ऐसा नहीं कि सिविल में ही फाइल कर सकता है, एक्सपीरियंस में भी डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं, इक्विफैक्स में या क्रिक में, हम सब में फाइल कर सकते हैं। पर ज्यादातर सिविल का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम सबसे अच्छा है, बाकी सबका ठीक नहीं है, अभी तक प्रॉपर मैकेनिज्म ही नहीं, ऐसा बोल सकता है। हेलो, यस सर। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर मैं एक बार केवल ब्रीफ में हाउ टू इम्प्रूव सिविल, उसका एक बार केवल नटशेल में कि भाई कि ठीक है हम गोल्ड लोन ले सकते हैं, FD के सामने आपने अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, ऐसे जो भी कुछ फीचर्स हुए एक बार फिर से बता दीजिए ना पॉइंट्स में। एक चीज है, मतलब तेरा हमको अगर सिविल स्कोर पहले पढ़ना है कि भाई कौन से फैक्टर से आपका सिविल स्कोर कम
होता जा रहा है या कम हो गया है, उसको पहले अटकना जरूरी है। अगर आपके सिविल स्कोर में राइट ऑफ स्टेटस है और पार्टी पैसा नहीं भर रही, बराबर, तो पार्टी को ऐसा तो बोल देना चाहिए कि भई अगर ये अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो ये अकाउंट सेटल करा अभी उसके बाद सेटल टू क्लोज बाद में कभी भी करा। सेटल करके क्या होता है कि उसका जो डीपीडी जो होता है ना, वो आगे बढ़ना कम हो जाता है। उसके अंदर उससे क्या होता है कि उसका जो रिस्क पोटेंशियल होता है ना, वो कम हो जाएगा आगे बढ़। हाँ, तो अलग अलग फैक्टर्स है। अगर आपने गोल्ड लोन, उसमें मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड लोन में क्या होता है कि जैसे 100 रुपए का गोल्ड है, उसमें वो लोग 60 या 70% ही लोन देते हैं। वो पूरी सिक्योर लोन होती है। तो उसमें वो लोग ऐसे भी, जैसे मुथूट है या मनप्पुरम है, वो लोग किसी को भी, मतलब अगर आपका 400 स्कोर है, फिर भी आपको लोन देते हैं, क्योंकि वो तो प्योर सिक्योर होता है, एफडी अगेंस्ट होता है। तो अगर पास्ट हिस्ट्री अगर नहीं सुधर सकती है, तो तब भी मैं ये बोलता हूँ। और दूसरी चीज है कि अगर किसी अकाउंट में राइट ऑफ या सेटलमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अकाउंट हमको क्लोज करना ही पड़ेगा। और कार्ड का अगर सेटलमेंट होता है तो चलता है, पर किसी पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन या कार लोन, या हमने जिस लोन में अप्लाई किया है और उसमें सेटल है, कार्ड में काफी बार ऐसा भी बोल सकते हैं बहुत पुराना कि भाई ये कार्ड हमने अप्लाई नहीं किया था, फिर भी शो कर रहा है, उसके बाद हमने सेटल किया था। पर ऑटो लोन या कंज्यूमर लोन में ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई हमने अप्लाई नहीं किया था, वो बीच ऑफ एग्रीमेंट होता है, उसके बाद आपने सेटलमेंट करवाया, तो सेटल टू क्लोज भी करवाना पड़ता है। सर जैसे गोल्ड लोन आपने बोला ले सकते हैं, तो टेन्योर कितना होना चाहिए, मतलब 3 मंथ, 6 मंथ्स, गोल्ड 1 ईयर? लोन में टेन्योर 3 साल, मैक्सिमम 3 साल। नहीं, हम कम का ले सकते हैं कि भाई केवल सिविल इम्प्रूव कर। ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो क्या है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए हमने आपका ये सजेस्ट किया है, क्योंकि आपकी पास्ट हिस्ट्री बहुत ज्यादा बिहेवियर एस्पेक्ट जो है वो और ऐसा नहीं है कि कोई भी कस्टमर मेरे पास आए 300 सिविल स्कोर लेकर और मैं 1 महीने में उसका स्कोर 600 या 700 कर दूं। ये भी जो लोग बोलते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, ये चीज गलत है। मैं अपने क्लाइंट को भी बोलता हूँ, सिविल एक बिहेवियर है, बिहेवियर से ही सिविल स्कोर बनता है। और बिहेवियर आपको 36 मंथ का अगर आपका मान लीजिए, मैं एक सिविल स्कोर शेयर करता हूँ एक चीज। सर एक क्वेश्चन और भी है मेंबर का, कि कैन वी फाइल पुलिस केस फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय बैंकर? कर सकते हैं, पर पुलिस केस कर सकते हैं, पर एक चीज है कि सबसे पहले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करो। अगर रेडी नहीं है, बराबर, सुधारने के लिए, तब भी आप करो। दूसरी चीज है कि आप पुलिस केस से अच्छा आरबीआई में एम्बर्समेंट में लिख दो। आरबीआई का एम्बर्स बैंकिंग लोकपाल है, तो बैंकिंग लोकपाल में भी आप मतलब एम्बर्समेंट करके है, उसमें भी आप लिख सकते हो। और काफी बार आरबीआई में जाके भी कंप्लेंट कर सकते हो। पर मैं एक चीज मानता हूँ कि सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्मेशन करो, उसके बाद सिविल को बोलो और रिस्पेक्टेड बैंक को। क्योंकि पुलिस फाइल वगैरह तो क्या है कि बैंक तो बोलेगा भी हमने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया तो वो सिविल को सही किया, पर सिविल बोलेगा हमने तो जो रिफ्लेक्ट किया वो बैंक है। सिविल की भी बहुत बड़ी गलती है। आज की डेट में मैं सिविल को भी आरोप लगा रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। सिविल का भी डेटा प्रॉपर नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि सिविल बहुत दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, उसका भी डेटा में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं, बराबर, कि जिसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसको भुगतना पड़ रहा है। और बैंक बोल रहा है, अभी मेरे पास एक केस था सेंट्रल बैंक, तो वो पार्टी रहती है अहमदाबाद में, उसको विशाखापट्टनम और जबलपुर का सेंट्रल बैंक का ही लोन अकाउंट उसके सिविल में शो हो रहा है, और सेंट्रल बैंक से ही निकला हुआ सिविल रिपोर्ट। तो ब्रांच मैनेजर बोलते हैं कि भाई, या जोनल ऑफिस बोलती है कि हम ये सुधार नहीं सकते। तो मैंने बोला कि ये इंफॉर्मेशन आपने ही शेयर किया है, तो आप क्यों शेयर नहीं कर सकते। तो हमने उसमें फाइट भी किया था। उसके बाद हमने, मतलब 2-3 महीने थोड़ा लगा, उसके बाद उसका सिविल स्कोर अपडेट हो गया। वो करना पड़ता है,
सर एक ये जो मैंने प्रैक्टिस का एरिया चुना है बहुत बहुत ही थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल है और थोड़ा डिफरेंट है, तो वही चीज है। सर एक दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड अकाउंट नंबर एंड लेंडर नेम फ्रॉम सिबिल इफ एनीवन yes. नॉट नो अबाउट इट? नहीं, हम जो अगर सिविल स्कोर परचेस करते हैं, बराबर, तो सिविल स्कोर डिटेल में आता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं एक ये बता रहा हूँ कि भाई ये सिविल स्कोर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। जैसे ये मैंने आपको ये जो है, बराबर, वो जैसे एसबीआई कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, कार्ड नंबर, ये है। उसके बाद कोई भी अगर सिविल स्कोर हम अगर परचेज करते हैं, बराबर, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका लोन अकाउंट, ये सब। जैसे इस पार्टी ने अभी एक एक्सिस बैंक में नई फ्रेश लोन लिया है, ये पता नहीं पुराना है कि पुराना है। तो ये किसी भी हम अगर सिविल स्कोर परचेज करते हैं तो लेंडर्स नेम, उसका टाइप ऑफ लोन, अकाउंट नंबर, ये जो आपको दिख रहा है ये अकाउंट नंबर। I thank you to the Umesh bhai to give me the opportunity about this bill, and you can ask any question still yet. सर इसमें ये जो आपने भी शेयर किया है, इसमें सैंक्शन अमाउंट है 240, करंट बैलेंस है 232, अमाउंट ओवर ड्यू 514 कैसे हो जाएगा? इसमें ऐसा होता है, जैसे ये लोन लिया हुआ है 2000 की साल में, बराबर, हाँ, तो ये ब्याज बढ़ता ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ये अकाउंट ऑलरेडी एनपीए में है, और एनपीए के कारण ये 5 हो गया है। ये काफी बार ऐसा भी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसमें भी देखो ना, सैंक्शन अमाउंट है 54,000, हाँ, अभी ये बता रहा है 3,55,000। हाँ, तो ये तो ठीक है ना, करंट बैलेंस 355 है तो ओवर ड्यू 355 हो गया, उसमें नहीं, ओवर ड्यू। वो बैंक की गलती भी है, पर ये अकाउंट हमारा था ही नहीं, तो हमने बहुत मगजमारी नहीं किया, बराबर। एक अभी मेरे पास एक केस मैं आपको बताऊं कि एक जो लोन पार्टी ने नहीं लिया है, फिर भी उसके सिविल स्कोर में शो हो रहा है, और उसमें ऐसा है, एक सेकंड, ये एक अपने मेंबर्स का क्वेरी है, इफ एनी कस्टमर अप्लाई फर्स्ट टाइम हाउसिंग लोन, कैश क्रेडिट, टर्म लोन, then what will be the basis for CIBIL? The customer does not have taken any loan, credit card or debit card. तो थोड़ी बहुत उसको, मतलब बैंक मतलब बड़ी सीसी देने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट फाइनेंशियल। जैसे ये सिविल, एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे सिविल मतलब आपका भले ही 600 स्कोर है, तो कोई बैंक अगर देना चाहता है सिविल स्कोर 600 के ऊपर हो, तब भी दे सकता है, उसकी देयर ओन मोशन टू गिव द लोन। अभी ये जो नहीं, जैसे क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई लोन लेने जाता है तो जनरली -1 आता है, तो वो -1 अभी तक उसने लोन नहीं लिया तो -1 आया, तो इस केस में भी ऐसा ही कुछ होगा या इस केस में कुछ? ऐसा ही होगा। जैसे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, ये मुकेश पटेल। हाँ, मुकेश ईश्वरला, ये कंपनी का रिपोर्ट है, पीएमपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये चीज है, जैसे इसमें एसबीआई की एक लोन है, तो इसमें क्या हुआ है, हाँ, ये अकाउंट, ये पार्टी को भी अभी मैं परसों ही मिला है, और यहाँ नहीं, एक सेकंड, यस,
काफी बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, चलो हमको ये भी देखना है कि लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग कब हुआ है। जैसे एक आईसीआईसी बैंक का इसी में बता था, जैसे सॉरी ये बहुत पुराना रिपोर्ट है, मतलब हमको जैसे ये एक एक सैंपल दिखाता हूँ। जैसे ये जो लोन है, जैसे ये काफी बार ऐसा भी होता है कि 3-3 4-4 साल के बाद भी वो अकाउंट ओपन होता है। वो अकाउंट कब का खत्म हो चुका है। जैसे लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग यहाँ पे 31 जुलाई 2020 बराबर। और काफी बार ऐसा भी होता है कि अभी 2021 चल रहा है, मतलब सितंबर 2021। तो ऐसा भी होता है कि वो सिविल स्कोर में मतलब हमने पे किया है, अभी लोन भले ही चल रही है पर उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो भी ऐसा होता है, तो हमको वो भी अपडेट कराना होता है। सर अपने सिबिल रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें इंक्वायरी नीचे आती है लिखी हुई कि कितने अमाउंट के लिए वो लोन ले रहा है या जो भी इंक्वायरी है। तो सिबिल रिपोर्ट परचेज करेंगे तो उसमें तो कुछ नहीं आएगा, नहीं नहीं, परचेज में नहीं आता। ओनली सिबिल इंक्वायरी। और मेरा ये हाँ, बोलना है सिबिल परचेज रिपोर्ट से अगर हम परचेज करते हैं तो सिविल का स्कोर पे भी इम्पैक्ट नहीं आता है। बराबर। सेकंड, जब अपने सिबिल रिपोर्ट है उससे तो अकाउंट नंबर और इंस्टीट्यूट का नाम मालूम नहीं चलेगा, सिबिल रिपोर्ट परचेज करेंगे तो ही मालूम चलेगा वो डिटेल। हाँ हाँ वैसे। और अगर आपने सारी लोन एचडीएफसी से लिया है और आपने लोन एचडीएफसी में ही अप्लाई किया है तो सारे लोन अकाउंट्स उसमें दिखेंगे, अगर एचडीएफसी से ही है तो। अगर वो तो कोई ठीक है, वो तो डिपॉजिट मालूम रहेगा। तो यदि किसी ने कोई क्रेडिट कार्ड दिख रहा है जो उसने समझ लो नहीं अप्लाई नहीं 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 किया है। नहीं नहीं, उसमें ऐसा है, अगर जिस बैंक में आपने लोन के लिए अप्लाई किया है उसी बैंक से आपकी पास हिस्ट्री है तो आपके सिबिल स्कोर में भी वो अकाउंट नंबर दिखाई देगा, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ वो ठीक है, लेकिन अदर बैंक का तो दिखाई नहीं देगा। नहीं दिखाई देगा, वो परचेज करना ही पड़ेगा। और सिबिल समझ लो हमारे को परचेज करना, मतलब ये रिपोर्ट परचेज करनी है क्रेडिट रिपोर्ट, तो कौन से इंस्टीट्यूट है जहां से अपन परचेज कर सकते हैं और सिबिल है, रिलायबल? मैंने बोला ना, सिबिल है, एक्सपीरियन है, इक्विफैक्स है, सभी है। इक्रिफ है। सर एक दूसरा क्वेश्चन है मेंबर का, प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट क्लोजर एंड सेटलमेंट डिफरेंस एंड इम्पैक्ट व्हिच ऑफिसर हैज द पावर टू क्लोजर। सर ऑफिसर नहीं होता, बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। क्लोजर का मतलब क्या होता है, जैसे सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे 100 रुपये मांग रहा हूँ और आप बोल रहे कि अगर आपको 40 लेना हो तो ले, 60 राइट ऑफ कर दो। तो आपको मैंने बोल दिया हाँ चल 40 आप ही दे, 40 ले लिया। उसके बाद वो बोलता है, एक लेटर इश्यू करता है कि आज के बाद मैं आपको रिकवरी के लिए फोन नहीं करूंगा या पैसे मांगने नहीं आऊंगा, मैंने आपका अकाउंट सेटल कर दिया है। मतलब वो अकाउंट राइट ऑफ हो जाती है अपने, और बैंक क्या है कि सिबिल पे चढ़ा देती है क्योंकि सेटल, अकाउंट हैज बीन सेटल। तो वो भी एक गलत है। और क्लोजर क्या होता है कि भाई वो अकाउंट क्लोज हो गया, अभी आगे सेटल में आगे जाकर क्लोज हो सकता है, पर क्लोजर में आगे कुछ नहीं हो सकता। क्लोजर मीन्स क्लोज, मतलब वो अकाउंट का अभी कुछ नहीं हो सकता है, वो क्लोज ही होगा अभी। मतलब सेटल में क्या होता है कि अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है सेटल के बाद, और बैंक पैसे मांगने के लिए या रिकवरी एजेंट आपके घर पे नहीं आए, मतलब एक चीज का मतलब मांडवाड़ हो गया। सर यदि सेटल अपन कोई अकाउंट है उसको सेटल कर दिया एंड देन बाद में 2 साल बाद में उस कस्टमर के पास में पैसे आ गए तो वो उनको पेमेंट करने जा सकता है इंस्टीट्यूट को जा कि सकता भाई है, क्लोजर तो, क्लोजर हो सकता है। तो जब भी वो समझ लो पेमेंट करेगा तो सेटलमेंट वो वर्ड है वहां से हट जाएगा। तो क्रेडिट हिस्ट्री पे पास्ट का सेटलमेंट का कोई इफेक्ट नहीं रहता है या नहीं वो भी नहीं, वो नलीफाई हो अपने जाता है? आप सेटलमेंट अगर एक बार हो गया उसके बाद 3 या 4 साल के बाद अगर अपडेट कराओगे तो उसका इम्पैक्ट मतलब उसका स्कोर में 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा अपडेट नहीं होता है। दूसरी चीज है उसका डीपीडी जो होता है ना, वो डे बाय डे जो बैंक का सिबिल होता है ना, उसके अंदर पिछले 36 मंथ की ही हिस्ट्री दिखाई देती है, उसके पहले की नहीं आती है। तो उसको धीमे धीमे मतलब ऐसा बोलते कि दुखनु अवसर दाड़ा, मतलब जेम जेम दिवस जैसे एमएम एनी इफेक्ट कुछ ही ओके ओके।
जैसे एक दो क्लाइंट ऐसे थे जिनका क्रेडिट कार्ड का इशू था, उसने सेटल भी करा दिया था, ठीक है, लेकिन नया अभी अगर कोई लोन लेने जाता है, वो 4-5 साल पहले का भी रहता है, तो वो दिखाता है कि भाई आपने पहले सेटल हाँ तो किया है। दिखाएगा, मैं कहाँ मना बोल रहा हूँ, पर क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट होता है ना, तो काफी बैंक चला लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, कोई ऑटो लोन या कंज्यूमर लोन में होता है ना सेटलमेंट, तो वो लोग नहीं चलाते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ऐसे भी एक्सक्यूज क्लाइंट आपको दे सकते हैं, आपको देना है बैंक को कि भाई ये उन्होंने गलत चार्जेस या हमने यूज नहीं किया था, क्या फ्रॉड भी हो गया, तो उसके बाद हमने सेटलमेंट कर, ऐसा एक्सक्यूज दे सकते हैं। पर मतलब जो हमने अप्लाई किया है पर्सनल लोन, बीएल, पीएल जो भी है, उसमें हम ये नहीं दे सकते। ओके, और सर मेरे को डिले हो रहा है, एक जगह ओके जाना सर, है। थैंक यू। और I request Umesh Uh, Khetan sir to give a vote of thanks. Please, Umesh sir. सर आई पर्सनली प्राउड ऑफ यू, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई मतलब स्पेशली थैंक्स टू उमेश भाई और क्या नाम है, श्याम जी। श्याम अग्रवाल सर, श्याम अग्रवाल। श्याम अग्रवाल जी, सॉरी सर नाम भूल गया। तो ये है, और मैंने अपना बेस्ट देने का पूरा ट्राई किया है। मैं हमेशा केस स्टडी पे ज्यादा फोकस करता हूँ रेदर देन थियरी, और मैं हमेशा अपने जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस जो केस होते हैं, तो वही मैं बताता हूँ कि भाई मेरे पास ये केस आए, मैंने शेयर किया है। तो उससे ही क्या है कि नॉलेज बढ़ता है। अगर मैं थियरी बेस करूंगा तो प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा बिलीव नहीं करता सर, हूँ। सर आपका नंबर शेयर कीजिएगा और हम लोग है ना आपको क्लिक भी करेंगे और जब भी मैं जब रिक्वायरमेंट भी होगी। मैं अभी हमारा पोल्यूशन खत्म हो गया है, अगर जब भी आपको वहां पे आकर प्रेजेंटेशन देना है तो मैं फिजिकल भी आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने आपका अपना नंबर शेयर किया है 922 से, मैं अपने नाम लिखना भूल गया। कोई नहीं सर, मैं कर दूंगा सर, मेरे पास नंबर है आपका, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और कोई भी क्वेरी रहेगी तो तो जरूरी वो आप कोई भी क्वेरी होगा तो मुझे शेयर कीजिए, एक बार डिस्कस कीजिए अपने क्लाइंट का, भले ही हुए ना हुए अलग चीज है, पर एक बार अपना जो जो भी केस है हाँ, वो एक बार डिस्कस करोगे तो मेरे को आइडिया रहेगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और आई स्पेशली प्रिविलेज टू दी उमेश खेतान जी, or I am vote of thanks to the Syam Agrawal ji who is coordinating that. थैंक यू। And I also thank all the dignitary or CA members of Surat branch or Aurangabad branch or study circle. Thank you sir, Thank thank you you. sir, thank you all the participants for patience listening. If you have any query, we can discuss with the Pankit sir whenever he comes to Surat. We will organize a physical meeting also with them to discuss in detail. Thank you all the members. Thank you sir. Thank you. Okay.